السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ شہرت اچھی ہو، شخصیت غیر متنازع۔ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے سلمان بٹ کی بطور کنسلٹنٹ پی سی بی تعیناتی منسوخ کر دی ہے۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے اعلان بھی کر دیا۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں بہترین کھیل ہے، غیر متنازع اور اچھی شہرت رکھنے والے کو سلیکٹرز میں شامل کیا جائے۔ پی سی بی کے سرپرست اعلیٰ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا سخت اور فوری ایکشن، سلمان بٹ کو بطور کنسلٹنٹ سلیکشن کمیٹی ہٹانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم نے جمعے کے روز ہونے والی سلمان بٹ کی تعیناتی کا سخت نوٹس لیا تھا۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے سلمان بٹ کو عہدے سے ہٹانے کا اعلان کر دیا۔ وہاب ریاض نے کہا، بطور چیف سلیکٹر میری ذمہ داری ہے کہ میرے ساتھ کون لوگ ہوں گے۔ سلیکشن کمیٹی میں وجاہت اللہ واسطی، وسیم حیدر، توصیف احمد شامل ہیں۔ کلیئر کر لیں، سلمان بٹ پی سی بی کا حصہ نہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کپتان شان مسعود کی قیادت میں 3 دسمبر سے آسٹریلیا میں اپنے ٹریننگ سیشن کا آغاز کرے گی، جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کینبرا میں 6 سے 9 دسمبر تک 4 روزہ میچ کھیلے گی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا آغاز 14 دسمبر کو ہوگا۔ قومی ٹیم کی قیادت شان مسعود کریں گے، جنہیں پہلی مرتبہ کپتانی کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اسکواڈ میں دیگر تجربہ کار کھلاڑیوں میں سرفراز احمد، بابر اعظم، محمد رضوان، حسن علی، شاہین افریدی اور امام الحق شامل ہیں۔ 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ پرتھ میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ 26 دسمبر سے میلبرن اور سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 3 جنوری کو سڈنی میں کھیلا جائے گا۔ پی ٹی آئی کا بانی ممبر ہوں، ممبرشپ سے متعلق عدالتی فیصلے موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کو بے ضابطگیوں کے تحت چلایا گیا۔ اکبر ایس بابر نے ترجمان پی ٹی آئی کا موقف مسترد کر دیا۔ بول کے پروگرام تبدیلی میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پر فراڈ ہوا۔ مزید کہا کہ بہت سارے لوگ چیئرمین شپ کے لیے الیکشن لڑنا چاہتے تھے، لیکن موقع نہیں دیا گیا۔ نگراں چیئرمین کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں، کچھ لوگ پارٹی تباہ کرنا چاہتے۔ اپنے راستے سے بھٹکی تو میں نے کہا اس کی اصلاح ہونی چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں کو کچھ نہیں دے گی، دھوکہ ہے۔ وہ اوریجنل آئین جنہوں نے پارٹی کو بنایا تھا، ہم اس کو زیادہ اس لیے اہمیت دے رہے ہیں کہ وہ اس کی بنیاد تھی اس جماعت کی۔ پھر اس کے بعد جو مینیپولیشن ہوئی اور یہ جو آئین میں تبدیلیاں آئیں، اسی لیے تھی کہ ایک شخصی کنٹرول جو ہے وہ بڑھتا جائے، اور آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ انتخاب جو نہیں ہوا نا، یہ تو انتخاب کے نام پہ ایک فراڈ ہوا ہے، جو آج اور پچھلے گزرے چند دنوں میں ہوا ہے، یہ تو پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔ پی ٹی آئی کے اپنے آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ تو دیکھیے، یہاں جب نیت ہی نہ ہو کہ ایک پارٹی کو ڈیموکریٹک ادارہ بنانا ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے جو آج ہوا۔ تو یہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ورکرز اور نظریاتی کارکنوں کو دھوکہ۔ نام نہاد انتخابات میں گوہر خان بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے۔ عمر ایوب جنرل سیکرٹری، یاسمین راشد پنجاب، علی امین خیبر پختونخوا، حلیم عادل سندھ اور منیر بلوچ بلوچستان کے صدر بن گئے۔ پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش، نہ کوئی ووٹ نہ مقابلہ، پارٹی کو وکیلوں نے ہائی جیک کر لیا۔ بیرسٹر گوہر خان چیئرمین پی ٹی آئی منتخب ہو گئے۔ خالی بیلٹ باکس دکھا کر تمام اہم عہدیداروں کا اعلان کر دیا گیا۔ نام نہاد انٹرا پارٹی الیکشن میں خالی بیلٹ باکس دکھا کر پارٹی کے چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی نے عہدیداروں کا اعلان کر دیا، جس کے مطابق تمام عہدیدار بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ عمر ایوب پی ٹی آئی کے مرکزی جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ علی امین گنڈاپور تحریک انصاف خیبر پختونخوا اور یاسمین راشد پنجاب کی صدر منتخب ہو گئی۔ حلیم عادل شیخ سندھ اور منیر احمد بلوچ بلوچستان کے صدر بن گئے۔ تمام اہم عہدے بٹ گئے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ اور نظریاتی طبقہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں، کیا یہ وہی جمہوریت ہے تحریک انصاف جس کا پرچار کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی میں جتنے بھی انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے سب جعلی تھے۔ پرویز خٹک کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر پارٹی کارکن نہیں اور اس کو سربراہ بنا دیا گیا۔ حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن کو 4 مہینے کا وقت دینا چاہیے۔ 12 سال سے جو الیکشن انہوں نے کرائے سارے جعلی ہے۔ میں سب کا گواہ ہوں، میں نے سارا تماشا دیکھا ہے۔ جتنے بھی ہم نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی نے ریکارڈ دیے وہ سارے جعلی تھے۔ تو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا صحیح کیا، کیونکہ سارے جعلی الیکشن تھے۔ میں گوہر خان کا یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ کیا اس کے پاس ممبرشپ کارڈ ہے؟ ایک بندہ ممبر ہی نہیں، اس کا کوئی پارٹی سے وابستگی نہیں، اس کو پارٹی کا سر پیر ہی نہیں پتا، وہ کسی کو جانتا ہی نہیں ہے، تو اس کو سربراہ بنا لیا۔ 8 فروری میں تو اس وقت تو صاف نظر آتا ہے کہ الیکشن ہوں گے، کیونکہ سپریم
कोर्ट का ऐलान किया। हमारा अपना ये ख्याल है कि इलेक्शन अभी जल्दी नहीं होने चाहिए। जब ये हल्का बंदियां बन जाए तो 4 महीने में इलेक्शन नहीं होनी। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दिलवाएं, उनकी बेइज्जती न करें, इंतजामिया के बजाय अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ें। बिलावल भुट्टो जरदारी की कायद नून लीग पर तनकीद। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि बादशाह की तरह मुल्क में आओ और इलेक्शन की हवा बनाओ। मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। ये कुछ लोगों का गलत फहमी है, वो समझते हैं कि हवाओं का रुख इस तरीके से बनता है कि आप बादशाह की तरह आए, आपके दरबार में सारे पेश हो तो हवा बन गया, इलेक्शन हो गया, खुदा हाफिज। बहुत ही कोशिश रायबंट की तरफ से किया जा रहा है कि कोई हवा बनाया जाए, मगर वो बात बन नहीं रहा। और जो लोग अपना ही घर नहीं निकालते, जिन लोगों को तारीख में पहली बार लाहौर में फूलों के बजाय टमाटर और अंडे का सामना करना पड़ रहे हैं हर इलेक्शन में, ऐसे कुछ लोग हैं जो ये तासुर पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसका जवाब, बेहतरीन जवाब जो है वो अवाम ही दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को तमाम पाकिस्तान को, तमाम दुनिया को एक अच्छा सरप्राइज दें। देखो, जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, बाकी जमातों का ये मुतालबा हालात के मुताबिक से। बिलावल से गैर जिम्मेदाराना बयानात की उम्मीद नहीं थी। उम्मीद है पीपी की आदत इलेक्शन पर बात करते हुए जमहूरी रिवायात को बरकरार रखेगी। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा कि 18वीं तरमीम अधूरी है, नून लीग मुकम्मल करेगी। इख्तियारात मरकज से सूबों तक गए लेकिन नीचे नहीं गए। हम ये समझते हैं और हम तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो इलेक्शन के हवाला से बात करते हुए उन जमहूरी रवायात को और उन इक़्तिदार को जो है वो पेश नज़र रखेगी। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में PMLN का मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। सियासी तौर पर वो हमारे खिलाफ बात करके ही हमारा मुखालफ वोटर जो है उसको अट्रैक्ट कर सकती है। बाकी उन्हें बिल्कुल इलेक्शन पंजाब में लड़ने के लिए PMLN के ऊपर तनकीद करके उन्होंने वोट हासिल करना है, तो उसकी उन्हें आज़ादी है, वो भरपूर तरीके से वो करें। 18वीं तरमीम अधूरी है, मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम को मुकम्मल करेगी। हमारा जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान में 18वीं तरमीम को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। मरकज से सूबों तक डेवोल्यूशन हुई, लेकिन सूबों से वो डेवोल्यूशन अभी अधूरी है। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सरगोधा के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की क़यादत में पार्लिमानी बोर्ड ने टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कर लिए। इंटरव्यू में नून लीग से सियासी वाबस्तगी से मुतालिक सवालात किए गए। पार्टी टिकट किसको दिए जाएंगे, नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सरगोधा के उम्मीदवारों का इंटरव्यूज का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की क़यादत में पार्लिमानी बोर्ड ने टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कर लिए। सरगोधा की कौमी असम्बली के 5 हलकों जबकि 11 सूबाई असम्बलियों के मुमकिना उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। इंटरव्यू में नून लीग से सियासी वाबस्तगी, फलाही कामों के हवाले से सवालात किए गए। पार्लिमानी बोर्ड ने मुश्किल वक्त में पार्टी से जुड़े रहने वालों को टिकट देने का इंदिया भी दिया। पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास पीर को होगा। इजलास में रावलपिंडी डिवीजन के शॉर्ट लिस्टेड मुमकिना उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। कराची के वारिस वापस आ गए हैं। MKM ने 3 आईनी तरमीम की तजावीज़ पेश कर दी हैं। काबिज़ीन हमारे 3 निकात मान ले, वरना ऐसा ना हो कि 6 निकात आ जाएं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची गुलशन इकबाल में जलसे से खिताब। उन्होंने कहा, ये शहर ना पहले किसी के कब्जे में गया ना अब जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान पर दहाइयों से 35 ख़ानदानों का कब्जा है, जिनके बच्चे लंदन में पल बढ़ कर आते हैं और धांधली से हुक्मरान बन जाते हैं। यही बच्चे अब कराची पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची लो हम आ गए हैं, तेरे बेटे, तेरे वारिस, तेरे रखवाले हम आ गए हैं। हमने 3 नुकात पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान के काबिज़ीन को पेश किए हैं। ये 3 नुकात मान लो, वरना
कहीं 6 नुकात दोबारा ना आ जाए। ये 2% रूलिंग 35 खानदानों के लोग अपने बच्चे पैदा करते हैं वोट लेने के लिए, अमेरिका लंदन पढ़कर आते हैं और यहाँ पर जागीरदार वडेरे वाली जहनियत उनकी नहीं जाती, सिस्टम चलाते हैं, करप्शन करते हैं, लूटते हैं लोगों को। अब इनफ इज इनफ। जो भी वजीर आला है, आज है या कल है, कि बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब। ये मैसेज क्लियर जाना चाहिए। जो आज चीफ मिनिस्टर हैं, जो कल थे और जो टाप रहे हैं फिर चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, इंशाअल्लाह ताला इनकी हुक्मरानी, करप्शन, बदउनवानी को लापता कर देंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान ने दानियाल अजीज को नोटिस देते हुए 7 दिनों में वजाहत मांग ली। नोटिस में पूछा गया है कि आइन इस बात का तकाजा करता है कि हर रुकन पार्टी के डिसिप्लिन की पाबंदी करे। आपका 30 नवंबर 2023 का मीडिया पर बयान पार्टी डिसिप्लिन और पार्टी की खिलाफ वर्जी और हक़ाइक़ के बरखिलाफ है, जिसने पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। शोकास अभी नहीं देखा, पढ़कर जवाब दूंगा। शोकास नोटिस पर दानियाल अजीज का बोल पर रद्द-ए-अमल। बोले, पार्टी मेरे किरदार और गुफ्तगू को जानती है। हमारी साख महंगाई से खराब हुई है। महंगाई पर काबू पाने में नाकामी के जिम्मेदारों को सामने लाना चाहिए। नोटिस तो मैंने नहीं देखा, जब मैं देख लूंगा उसको पढ़ लूंगा तो फिर अगर वो है तो उसका मैं जवाब दे लूंगा। लेकिन गुजारिश है जो टॉपिक है उसकी तरफ आए। पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई है, सन 1947 से लेके आज तक कभी इतनी नहीं हुई और लोग आवाम शिकस्त और रेख्त हो गई इससे। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि माजी के जो फेलियर्स हैं उनका तदारक होना चाहिए और हमें एक मजबूत प्लान लेके सामने आना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में हमारे साथ जो अभी हो रहा है वो दोबारा ना हो सके। और उसमें हमारा इंफॉर्मेशन का जो सारा निज़ाम है वो भी बहुत नाकस रहा है, हम कम्युनिकेट ही नहीं कर सके। अगर एहसन इकबाल साहब का ये मानना है कि पीटीआई ने ये महंगाई की है, जो कि ये कैसे हुई है और कौन जिम्मेदार है और कौन उससे मुस्तफीद हो रहा है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इनकी मीटिंग्स में ये फिर क्या कर रहे थे। पीटीआई रहनुमा मिर्जा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। मिर्जा शहजाद अकबर को इस्लामाबाद में सिविल जज अहमद शहजाद गोंदल की अदालत से इश्तिहारी करार दिया गया। शहजाद अकबर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। शहजाद अकबर के खिलाफ फ्रॉड और दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा नंबर 156 दर्ज किया गया था। ना किसी की हिमायत करेंगे और ना ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा को किसी दबाव में लाया जा सकता है। चीफ जस्टिस अपने हल्फ के मुताबिक फ़राइज़ की अंजामदही करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खत पर जवाब, इलामिया जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खत पर जवाब जारी करदा एलामिया में कहा गया है 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त मौसूल हुई। तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसीलात नहीं दी गई। दस्तावेज इंतजार हुसैन पंजोथा ने अरसाल की थी। एलामिया के मुताबिक दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई थी। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला फौजी अदालतों और इंतखाबात केस को तकमील तक ले गए। एलामिया में वाज़ेह किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को न किसी दबाव में लाया जा सकता है, ना किसी की हिमायत करेंगे। वो अपने हल्फ के मुताबिक फराइज की अंजामदही करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरबा मोहर लिफाफा मौसूल होने से पहले ही दस्तावेज किसी ने मीडिया को जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 से 1 दिसंबर 2023 के दौरान 624 मुकदमात निपटाए। सुप्रीम कोर्ट के जारी इलामी के मुताबिक नवंबर 2023 से 2 सितंबर 2023 के दौरान 364 नए मुकदमा दर्ज हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस मुकदमात को तेजी से निपटाने और बैकलॉग को कम करने के लिए पुरअज़्म है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।